बात पूरी दुनिया में कुछ इस तरीके से हो रखा है कि हर आदमी सहमा सा लग रहा है, हर आदमी कहीं न कहीं डरा हुआ लग रहा है। जब दौर ऐसा था कि महाशक्तियाँ परमाणु की बात किया करती थी, एक छोटे से कीटाणु ने, एक छोटे से विषाणु ने सारी दुनिया को डरा के रख दिया। इस स्थिति में ये बात क्या हो गई है कि विषाणु जो भी जिस भी तरीके से आ गया है दुनिया में, ये एक दिन में जाने वाला है। ये बहुत बड़ा है हमारे लिए। हम बहुत तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि इसके लिए दोषी कौन है, ये कैसे आया, कहाँ गलती हुई जिससे कि ये आ गया। अनेकों चर्चा के मुद्दे हैं। हम एक-दूसरे पे इसकी राजनीति भी कर रहे हैं, इसका हल भी ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मुझे जो लग रहा है कि इसमें हल ढूँढना ही सबसे बढ़िया बात है। तो इस सारी स्थिति को समझते हुए आज अपने लोग बैठे हैं। मेरे साथ वैभव है, इस वक़्त रसिया में है, एमबीबीएस कर रहे हैं। वेरोनिका है, तो वेरोनिका भी चाइना से एमबीबीएस कर रही हैं। राजन हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं और इसी प्रकार से संतोष हैं, मौके के बैंगलोर हैं। शशि है जो भिवाड़ी से अलवर से हैं। तो अपने जो भी लोग हैं अलग-अलग एरिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो पहले तो अपना-अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपके यहाँ वर्तमान स्थिति क्या है? मैं आरंभ करूँ वैभव, आप बताएँ थोड़ा? Hi, my name is Vaibhav and I'm from Russia and studying in Kursk State Medical University. अभी रशिया में around 42,000 पॉजिटिव केस हो चुके हैं and we are going through a lockdown like in India. सेम कंडीशंस। वेरोनिका, आप अपने बारे में थोड़ा-सा। Hello, my name is Veronica. I am from Jilin University, China. Right now, I am doing my internship there, but presently I am in India, Sangria. And वहाँ पे मामला भी काफ़ी कंट्रोल हो चुका है, लॉकडाउन भी खुल चुका है, सारी एक्टिविटीज़ धीरे-धीरे स्टार्ट हो रही हैं, पर इंडिया में अभी स्टार्ट हुआ है, अभी चलेगा। हम थोड़ा फेज़ में लेट हैं एक तरीके से ये कहें। राजन, आप थोड़ा-सा अपने बारे में। So my name is Rajan Gautam. I'm a food technologist by background. I'm working locally here as procurement manager, food ingredients. So I have been like food science student from Guru Jambeshwar University in India, and I have worked in India before migrating to Australia. In Australia, we have got 6,600 positive cases, and so far 70 deaths because of COVID-19. So situation is like we call it different stages of lockdown. We are at stage number 3. What that means, you can go out of home to buy essential items like food, grocery, medical, any medical things, medicines. Is it a forced lockdown or self-controlled? No, we call it level 3 lockdown. Level 3 means you can get out of your home only to buy essential items. So essential might be groceries or medicine, or if you are a health worker, like you are a doctor or nurse. Otherwise, you are supposed to stay at home. And if you are caught at the road in your vehicle without any reason driving on the roads, you get like $1,000 fine in Sydney, $1,500 fine in Melbourne. So, and like India, according to us, is in lockdown 4. So we haven't reached that stage yet. And so far, Australian authorities have done really good job. अपने संतोष साथ में है बैंगलोर से। संतोष, आप बताएं तो। Yeah, Uday, thanks first of all for all of you to inviting me for this beautiful conversation. I am right now at Bangalore and I am handling one bread manufacturing facility here in Bangalore. So for lockdown, as for India, entire country is under lockdown, and so that is true for Bangalore as well. But for Bangalore, for me, I am not following lockdown because I have to go to take care of my factory every day. I have to see how sales function and everything is happening. So I am so far going to city, visiting different places, meeting ministers or maybe secretaries to continue my business. So I see city throughout Bangalore, and lockdown is being observed with, I think, kind of fully disciplined way. And yes, people are following it up. And Bangalore, so far, I don't say it is too much. Sasi, Bhiwadi से 100 Sasi. Hello. Yes. Hello, everyone. Basically, I am from Rewari. Rewari itself, it is at the border of Rajasthan and Haryana. The names are a bit confusing, Rewari and Bhiwadi, but I am from Rewari and it's on border of Rajasthan and Haryana.
And I have also done my food technology course, MSc, from Guru Jambeshwar only. And but right now I'm in teaching. राइट मैं इसी बात को दोबारा से शुरू करूं कि इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक बात मोटे से रूप से आई कि पूरी दुनिया में कंडीशन लगभग एक जैसी सी। कहीं लॉकडाउन की कंडीशन अलग हो सकती है, टाइप अलग हो सकती है, परंतु सारी दुनिया भयभीत जरूर है। और अगला सच भी उतना ही बड़ा है कि हम किसी भी प्रकार से अभी कोई संभावना नहीं है कि कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। कहीं इरेडिकेशन नजर नहीं आ रहा है, कोई वैक्सीन नजर नहीं आ रही। तो क्या ये लाइफ में लंबा जाने वाला है, तो इसके लिए हमें क्या बदलाव कर लेने चाहिए कि हम वापस से एक हैप्पी लाइफ जी सकें, एक सहमे हुए से की बजाय एक कॉन्फिडेंस की लाइफ जी सकें। तो इसमें मैं चाहूंगा पहले वरोनिका, आप एज ए डॉक्टर क्या सोचती हैं कि इसके अंदर हमें क्या बदलाव करना होगा कि हम परमानेंटली कहीं न कहीं एक हैप्पी लाइफ की तरफ लौट सके, कॉन्फिडेंट लाइफ की तरफ? अगर ये नहीं रुका और लंबा जाने वाला है, अगर ये लंबा जाए एंड तो जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन के जब इस फेज के दौरान जितने प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए हैं, वो हमें कंटिन्यू करने पड़ेंगे। एंड मेन थिंग इज पर्सन टू पर्सन डिस्टेंस हमें अभी नहीं बल्कि आगे भी जाते टाइम बना के रखना जरूरी हो जाएगा। नॉर्मल जितना एटिकेट्स में माने जाते हैं, जैसे यहाँ इंडिया में जनरली जो लोग होते हैं, यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे सामने कोई बैठा है या हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे हम छींक देते हैं तो हमें किस वे में करना है, एल्बो में कवर करना है, माउथ कवर करना, इधर उधर स्पिटिंग नहीं करनी। ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, इनको लाइफ के परमानेंट चेंजेस बनाने बहुत जरूरी हो जाएंगे। ये एक इंडिविजुअल को किस प्रकार से अपने आप को बदलना होगा? वरोनिका ने हमें बताया कि हमें अपनी आदतों में व्यक्तिगत बदलाव लाने होंगे। क्या ऐसे ही हमें संतोष सार्वजनिक से जो समारोह होते हैं, भीड़ वाली जगह होती हैं, उनको भी कुछ अपने आप में चेंज करना पड़ेगा क्या? हमने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल, सार्वजनिक जगह हो, भीड़ जैसे कैसे आप करें? मार्केट में जा रहे हो या फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, जैसे मैं खुद फैक्ट्री हैंडल कर रहा हूँ, वहाँ पे कम से कम 150-200 वर्कर काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, गेट में एंट्री के टाइम में हर वर्कर का पूरा टेम्परेचर स्कैनिंग होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है, आप लास्ट कब बीमार पड़े थे, आप कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन उससे पहले पूछ के जब सब कुछ हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं ये फिट टू एंटर है, तब उसको एंट्री मिलती है। एंट्री होने के बाद में उसको अपने हाथ हैंड वॉश करने होते हैं, उसके चेहरे पे मास्क लगा होना चाहिए और उसके बाद में हाथों को स्टेरिलाइज करके उसके बाद ही उसको हम प्लांट में एंट्री देते हैं। और फिर प्लांट के अंदर भी इस तरह सारे प्रिकॉशंस हमने लगा रखे हैं। तो एक तरह से आप पब्लिक प्लेस इसको मान सकते हो। तो फैक्ट्री हो, कोई इवेंट हो, आई थिंक इवेंट्स तो हमें काफी टाइम तक अभी हमें कैंसिल करके या पोस्टपोन करके रखने पड़ेंगे, चाहे मैरिज हो और कोई मजबूरी हो तो जो इवेंट्स हैं वो हमें बहुत छोटे करने पड़ेंगे। और वहाँ पे जो भी एसओपी है सोशल डिस्टेंसिंग की, वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी और फॉलो भी रिलीजियसली करनी पड़ेगी। जैसा हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जूते बाहर खोल के जाते हैं, विदाउट थिंकिंग कि जूते नए हैं कि साफ हैं, लेकिन जूते बाहर ही रखते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके यहाँ पे आसपास कोरोना नहीं है तो यू बी फ्री, नहीं। आपको एसओपी जो बता दिया है, मास्क लगाने का, सैनिटाइजर लगाने का, हाथ धोने का, एक जैसे आप मंदिर में पूजा करते हैं उसी तरह से उस एसओपी को पूरा रिलीजियस भावना से फॉलो करना है। अपने आप को तभी चेन को तोड़ सकते हैं। सामान्य बातों को एक नियम के रूप में अपनाना होगा और तभी जाकर हम अपने आप को बदल पाएंगे। राजन, एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप कहीं एक डेवलप्ड पोजीशन में लाइफ को जी रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग आदि का कैसे अपनाना होगा कि हम एक आम आदमी निश्चित रूप से कॉमन ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम यूज करें, अब तब क्या करें? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 1.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। सो बेसिकली एक सीट खाली है। सो अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या आप जैसे हम ट्रेन काफी यूज करते हैं सिडनी में, तो आपको 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखना जरूरी है। तो यही लागू करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना नहीं चल सकता है, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। मैंने कल एक थोड़ा सा इसका बारे में सोचा था कि बसों में भी अब जो हम 50 सीटर्स जो बसेस थी हमारी, उसको 20 या साइज वही रहे, लेंथ वही रहे
और उसके अंदर केवल 20 लोग ट्रैवल कर पाएं, 25 लोग ट्रैवल कर पाएं, ऐसी पोजीशंस क्रिएट करनी पड़ सकती है ताकि हमारी ट्रैवलिंग में भी हमारा सोशल डिस्टेंस मेंटेन रह पाए। ये एक नजर आ रही है। मैं इसी प्रकार से वैभव, आपके वहां भी ये बहुत सारी ऐसे बदलाव गवर्नमेंट सोच रही होगी, और आप इस वक्त अभी वही हैं, एग्जाम सिस्टम है, यूनिवर्सिटी क्राउड है, कहीं फंक्शंस हैं, तो उन लोगों को अब मैं आपसे एक ही बात करूं, इन चीजों को अपने रोकते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, खास तौर से एजुकेशन में, आप बताइए। देखिए, एजुकेशन में मेन बात है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ करती हैं एजुकेशन में। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आ चुकी है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम सारे सब्जेक्ट्स अपने पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ वैसे कर पा रहे हैं। इसी चीज़ की सिस्टम की जो है इंडिया में भी ज़रूरत है। जैसे इंडिया में भी बहुत ही कम, आपको हमारे पास युवा स्टूडेंट है, मैं आपसे एक बात दोनों से समझना चाहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम अपने आप में सर्टिफिकेट देने का बहुत बड़ा माध्यम है, तो इस वक्त हमारे एग्जाम रुक गए। एग्जाम का पैटर्न इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ऑफलाइन ही संभव था, क्या इंडिया में इसका बदलाव कोई संभव नजर आ रहा है? देखिए फिलहाल तो अभी इसका कोई बदलाव एट अ मोमेंट तो कुछ भी नहीं है। वी नीड एजुकेशन रिफॉर्म इन आवर सिस्टम। हम एक ही रात में चेंज नहीं कर सकते कि आप ऑनलाइन आइए, आप एग्ज़ाम दीजिए। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। सो इसी टाइम पे वही जो गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया कि पोस्टपोन द एग्ज़ाम, या कई क्लासेस में बिना एग्ज़ाम लिए उन्हें आगे अपग्रेड करना स्टूडेंट्स। बचाव किया जा सकता है, तो क्या ये नहीं लगता कि हम इसमें कहीं डिस्टेंस एजुकेशन को आज ज्यादा ढंग से समझें या ओपन बुक एग्जाम सिस्टम को कुछ ढंग से समझे? वरोनिका, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? इंडिया में आई थिंक इन अ मेडिकल फील्ड में मोस्टली इनको जितना हो सके, इनके पास इतने ग्रेजुएट्स हैं, उनको आगे लाके ट्रेनिंग देके स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक फील्ड में ये अभी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। आई एग्री विद वैभव की, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को टोटली चेंज करने में काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन एट द मोमेंट इनके लिए जितना हो सकता है, जितना बेटर है, लाइक मेडिकल स्टूडेंट्स इतने बैठे, इवन जिनके एमसीआई क्लियर हो चुके हैं, उनको भी अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो जब हम अभी ऑफलाइन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट इनको ट्रेनिंग देके सबको फील्ड में लाया जाए, जितना हो सके वो करना चाहिए। राइट, हम ऐसी खूब सारी बातों को सोच तो रहे हैं, परंतु क्या इसके साथ साथ कहीं हमारी इम्यून पावर भी कोई मायने रखती है क्या, राजन? ऐसा, जैसे मेरा मानना यह है कि ये वायरस हमेशा एनवायरनमेंट में था, ये कोई नया वायरस नहीं है। जब भी एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस होता है तो चीजें ज्यादा पावरफुल बन जाती हैं, और जो वायरस है वो अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा क्लेवर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये इतनी जल्दी अपने आप को म्यूटेट करता है, चेंज करता है, और आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके जेनेटिक मटेरियल को यूज करता है। तो ये हमेशा था। ये क्या हुआ, इसके अंदर दो चीजें हुई हैं। एक तो अर्थ के ऊपर जो इम्बैलेंस है, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, वो कारण है। दूसरा, जो फूड सेफ्टी का लैप्स हुआ चाइनीज मीट मार्केट के अंदर, जो अनकुक्ड मीट की मिस हैंडलिंग हुई, उस कारण से ये हमारे अंदर आया। तो अगर हम अच्छी फूड सेफ्टी और अच्छी हाइजीन की चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, तभी हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। और दूसरा, हमें अपनी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना बदलनी, राइट। फूड हैबिट्स के साथ साथ हम ऐसा भी कुछ करें जिससे कि हमारी इम्यून पावर भी मेंटेन रहे और अपने आप में बूस्ट अप होती रहे। बिल्कुल, हमारी इम्यून, अगर आप देखें इंडिया की जो डाइट है, जो हमारी डाइट है, इंडियन डाइट, वो एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस ऑलरेडी काफी अच्छी चीजें हैं। हम इतने स्पाइसेस खाते हैं, ट्यूमरिक है, गार्लिक है, जिंजर है, क्यूमिन है। तो ये सारी जो नेचुरल चीजें हैं, ये किसी और देश या किसी और सभ्यता के पास नहीं है। हमारे पास काफी, जो कई लोग हल्दी का दूध पीते हैं जैसे रात को, ये सारी चीजें, या कोई तुलसी है, तो हमारे पास तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर ऐसी एंटीवायरल थिंग्स हैं जो दूसरे देशों को तो पता ही नहीं है। दूसरे देश तो वैक्सीन की बात करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी ए लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव कर सकती हैं,
वो हमें वायरस को किल तो नहीं करेंगी, पर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एनहांस करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को पहचान ले। क्योंकि मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, जब वायरस आपके अंदर जाती है, आपका इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं करता। और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप अच्छे फूड हैबिट्स हैं, तो वो जल्दी कर लेगा आइडेंटिफाई, और हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप ही एंटीवायरल डेवलप कर देता है। राइट। मैं शशि आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप सभी भी सुन ही रहे हैं कि महानगरों में बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं। मेरा मतलब है महानगर मतलब बड़ी सुविधाओं का केंद्र, और बड़ी सुविधाओं का केंद्र मतलब बहुत बड़ी भीड़ का सेंटर। आने वाले समय में क्या हमें बदलाव करना होगा कि हमारे महानगर की सुविधाएं और महानगर की भीड़ गांवों तक आ जाए? हम एक कहीं भीड़ के अंदर कोई एक हब डेवलप नहीं करें, भीड़ की हब डेवलप नहीं करें, और हम डिसेंट्रलाइज्ड लाइफ जिए, ये ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा? हाँ जी, एक बात बिल्कुल ठीक है आपके उदय, और इसमें ये भी है कि अभी भी आप देखिए जो हमारे फिगर्स आ रहे हैं, उसमें जितने भी ये जो मेट्रोज हैं, जहाँ जहाँ एयरपोर्ट है, वहां पर फिगर्स बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि ये लैब्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की हुई है हमारे यहाँ शुरू में, कि उनको विदाउट एनी चेकिंग उनको सबको जाने दिया जो आ रहे थे लोग बाहर से। अब उसी का ही हमें ये हर्जाना भुगतना पड़ा है। जैसे इंदौर है वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, एंड लेकिन वहाँ पर फिगर बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अपना मुंबई है, दिल्ली है, ये सब एयरपोर्ट बाहर से लोग आ रहे थे इसलिए। और ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर यहाँ से लोग सोचेंगे कि शहरों में तो सब कुछ बहुत वो हो गया है, चलो गांवों की ओर चलते हैं या कुछ करते हैं, या जो गांव के लोग ही हैं जो शुरू में ये भी बहुत बड़ी दिक्कत आई थी कि वो लोग पलायन कर रहे थे, है ना, अपने अपने गांवों में जा रहे थे। तो ये काफी गवर्नमेंट ने किया भी है, और इसको आगे आने वाले उसमें जैसे कि आपने पूछा ही है कि इसको हम रोजमर्रा में कैसे डेली उसमें कैसे लाएंगे, कैसे इसको एक हैबिट बनाएंगे कि भाई वहाँ कम से कम अपने गांवों में जाकर जो चीजें ठीक है उसको हम खराब ना करें। तो ये वास्तव में सोचने का ही मुद्दा है कि ये कैसे किया जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ की व्यक्तिगत जो इंडिपेंडेंट जो वहीं की जो बॉडीज है उनको बहुत उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा कि उनको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए जाए। यस संतोष, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। आप लोग फैक्ट्री से जुड़े हैं, वहां एक प्रोडक्शन यूनिट होती है और वो बहुत बड़े लेवल की होती है। तो क्या ये बड़े लेवल की प्रोडक्शन यूनिट्स आने वाले टाइम में इसी तरीके से काम करती रहे, या इनके साथ साथ कहीं हम छोटी छोटी यूनिट्स जिनमें केवल 5, 10, 15 लोग ही काम करें और स्पेसियस हो और वहां काम ज्यादा बढ़िया हो पाए और इनकी संख्या बढ़ा दी जाए? अभी फैक्ट्रीज बड़ी हैं, संख्या कम है। मैं चाहता हूं कि फैक्ट्रीज छोटी हो जाए और संख्या बढ़ जाए। क्या ऐसा कभी भविष्य में संभव हो सकता है, या ठीक रहेगा कि नहीं? उदय सिंह, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन लिटिल लेटर। मैं एक और बात पहले ऐड करना चाहता हूँ जो भी इससे पहले राजन बात कर रहा था। ये जो कोरोना वायरस का संकट हमारे ऊपर आया हुआ है ना, ये मेरे ख्याल से इसलिए ज्यादा हमारे ऊपर आज मंडरा रहा है या ज्यादा इतना खतरनाक इसलिए लग रहा है बिकॉज हमने मेडिकल या अदरवाइज भी बहुत डेवलपमेंट कर लिया है। मेडिकली हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। हम जो नेचुरल सिलेक्शन जो अब तक हो रहा था, जो एक नेचर हमें छान छान के हमारे अच्छे अच्छे जीन्स आगे ले आती थी, बीमारियां दे के, कुछ बचपन में मर जाते थे, कुछ पैदा होकर मरते थे, कुछ 20 साल के होते तक मर जाते थे। तो वो स्क्रीनिंग जो नेचुरल थी वो हमारे डॉक्टर्स ने रोक दी है। और डॉक्टर्स जो है सबको बचा लेते हैं, भले उसके कमजोर जीन्स हैं, भले अच्छे जीन्स हैं। तो डार्विन ने जो प्रिंसिपल दिया था वो अभी आई थिंक ह्यूमन बीइंग ने नेचर के अगेंस्ट खड़े होकर वो खत्म कर दिया है। तो क्या हो रहा है, पिछले 200-300 साल से हमारी सारी जनरेशन, उसका जीन्स वीक है, स्ट्रॉन्ग है, उसका इम्यूनिटी वीक है, स्ट्रॉन्ग है, सब प्रोपेगेट हो रहे हैं। तो वो क्या है, फिर आगे आगे जीन्स में जैसे हमारी जनरेशन फर्दर आ रही हैं, एक वीक जीन्स एक स्ट्रॉन्ग जीन्स को भी वीक कर दे रहा है। तो ऐसे वायरस उस पर ज्यादा बड़ा अटैक कर रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसा इम्पैक्ट इतना हैवी और सीवियर होगा कि हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल हैं, जो जहाँ पे हमें लग रहा है कि मेडिसिन ह्यूमैनिटी के फेवर में काम कर रही है, मेडिकल रिसर्च ह्यूमैनिटी के फेवर में काम कर रही है, वास्तव में ये मेडिकल ही ह्यूमैनिटी को कमजोर कर रही है। जो इतना एडवांसमेंट है हमारे को पूरा वीक कर देगी, हमारा जीन्स इतने वीक हो जाएंगे कि ऐसा वायरस, आज तो ये वायरस टच होने से फैल रहा है उदय सिंह, तब क्या होगा जब ऐसा वायरस एयरबोर्न हो जाएगा, हम सांस लेते ही बीमार पड़ जाएंगे। और जब तक हम वैक्सीन बनाएंगे, कुछ करेंगे, तब तक हो सकता है पूरी दुनिया पे खतरा आ जाए। तो अब तक भगवान ने जो हमें पड़ा है, हाँ, और डेवलपमेंट देखिए, पहले एक बात और, पहले भगवान ने सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया कहाँ बनाया, यूएस, अफ्रीका कहाँ पे है, अमेरिका कहाँ पे है, एशिया कहाँ पे है।
बीच में इतने बड़े बड़े समुद्र देख के हमें अलग किया था कि ऐसी कोई महामारी आए तो एक तरफ जरूर इंसान बच जाएगा या उसकी स्पीसीज बच जाएगी। बट हमारे एडवांसमेंट डेवलपमेंट का देखिए खामियाजा देखिए, हमने ऐसा बना दिया जैसे हम अपने गांव से अपने शहर में जाते हैं वैसे मैं आपकी बात को इस प्रकार से कहूं कि पहले थोड़े से दिन पहले कह रहे थे कि एक कमरे में सारी दुनिया ला दी है, अब दुनिया ने कुछ ऐसा किया कि हमें एक कमरे में ला दिया, तो उससे बाहर निकलने निश्चित रूप से ये समस्या तो है, परंतु मैं इससे उबरने के लिए जो मैंने प्रश्न पूछा आपसे कि हमें हमारी फैक्ट्रीज छोटी छोटी करके संख्या बढ़ानी चाहिए क्या? यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। तो अभी ये अपने आप डिसाइड होगा, जैसे धीरे धीरे अभी हम लोग जैसे कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे काफी लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है। आज की जो पॉपुलेशन है ना, जिस तरह का हमारे पास जनसंख्या है, उसको जो मॉडल आप बोल रहे हो उससे फीड करना शायद इम्पॉसिबल होगा अभी इस टाइम के ऊपर। और जैसे आप इसको सब बंद करोगे सारा सिस्टम एकदम चरमरा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अगर ये लंबा चला, हमारे को इसका कोई इलाज नहीं मिला, जो आप बोल रहे हैं उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, वही करना पड़ेगा, तो वही अपने आप ही होगा, उसका कोई रवैया नहीं होगा हमारे पास। चलो एक प्रश्न सभी से और कर रहा हूँ, और किसी एक को अपनी चॉइस से आपको ठीक लगे कि ये मेरी फील्ड है, मेरी रुचि की है, तो जरूर आप रेज हैंड करें। आप बताएं कि नेता लोग सारी दुनिया में एक ही रिवाज में काम करते हैं, जब पड़ती है चुनावों में तो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और भीड़ को ही वो अपना माध्यम बनाते हैं। क्या अब वो इतनी बड़ी भीड़ जुटा पाएंगे, और यदि वो जुटाने में सक्षम हो जाते हैं तो क्या आम आदमी को जुटना चाहिए उनकी भीड़ में? रोनिका, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन पॉलिटिशियंस ही नहीं, बल्कि कोई भी भीड़ हो, चाहे यहाँ पे जैसे मेले लगते हैं, गैदरिंग्स होती है, शादियां होती है, हर एक चीज को हमें कट शॉर्ट करना पड़ेगा, वरना ह्यूमन रेस खतरे में है। बिल्कुल, इसके लिए कहीं नियम बनाने होंगे कि इससे ज्यादा तो संख्या में इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ये ख्याल से आप ये माने और कुछ बताएं हमें, पूरी दुनिया में कहीं एक ऐसा लॉ नहीं बन जाना चाहिए कि इससे बड़ी तो संख्या में भीड़ इकट्ठी होनी नहीं चाहिए? आई थिंक जब तक पर्सन खुद से स्टेप्स लेना नहीं शुरू करेगा एंड इसकी गंभीरता को समझेगा कि ये जब डेवलप कंट्रीज में इतने ज्यादा इफेक्ट डाल चुका है, तो इंडिया में तो हम इतनी डेवलप्ड कंट्री भी नहीं है, तो जब तक पर्सन अपने में चेंजेस ला के इसको खुद में हैबिट्स में अडॉप्ट नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। आपसे कंक्लूजन सुनना चाहूंगा कि आप इसको कंक्लूड इस प्रकार से करते हैं कि कहाँ हम आ रहे थे, अब हमें कहाँ जाना है? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि लीडर्स सारे वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या हमारे स्कॉट मॉरिसन हो ऑस्ट्रेलिया में, उनकी लीडरशिप एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पे इस टाइम पे सबसे अच्छी हो रही है। इन द सेंस इंडिया में भी जो प्रधानमंत्री ने किया या ऑस्ट्रेलिया में भी किया, वर्ल्ड लीडर एकजुट होके मिलजुल के काम कर रहे हैं, जो कभी नहीं हुआ ह्यूमन इतिहास में। लग रहा है आप देखो, इतने अभी डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर जैसे हम बातचीत कर रहे हैं ऐसे ही वो बातचीत कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वंस इन एवरी वीक देख रहे हैं कैसे ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। और सो ओवरऑल आई थिंक इन फ्यूचर लीडर्स खुद ही बड़ी रैली नहीं करेगी, क्योंकि हर एक बंदे को अपनी जान प्यारी है, क्योंकि उनको भी उतना ही एक्सपोजर होगा जितना वो आम जनता को देंगे, तो उनको ये बाग उतनी जल्दी कैच करेगा जितना आम आदमी को करेगा। और उनको करना भी नहीं चाहिए। जो 1.5 मीटर की दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो अब आने वाले समय में रहेगी, शायद 2-3 साल में तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। और दूसरा, अगेन मेन थिंग इज, मेरे अकॉर्डिंगली हमें अपना इम्यून सिस्टम अच्छा बनाना होगा, हमारी हाइजीन कंडीशंस अच्छी बनानी होंगी, और फूड सेफ्टी में जो लैब्स हुए हैं पर्टिकुलरली मीट इंडस्ट्री में, वो हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा और मेक श्योर करना होगा कि वो आगे से ना हो। बिल्कुल, पर्सनली फिट करना होगा, सोशली हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, और निश्चित रूप से फूड हैबिट्स भी हमारी शानदार होनी चाहिए। कहीं न कहीं आपके अनुसार नॉन वेज से वेज की तरफ हमें आना होगा। वैभव, आप जो ये सारा कुछ सुना है और आप बहुत विचारवान हैं, तो इसमें कहीं कोई बात छूट गई हो, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से अभी क्या होगा कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हमारे अंदर क्रिएट हो रहा है लॉकडाउन के अंदर। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही हम लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, तो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकली वो डर रहेगा कि कहीं ये पॉजिटिव तो नहीं, ये कैरियर तो नहीं। अगर कोई
खांस देगा या छींक देगा, एक हमारे अंदर वो साइकोलॉजिकली डर आने वाला है। जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, हमें उस साइकोलॉजिकली डर से भी उभरना है, एक अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस के साथ साथ। हाइजीन प्रैक्टिस के साथ साथ हमें साइकोलॉजिकली उभरना है। वरोनिका, आपको क्या लगता है कि कहीं वैभव के साथ कोई और बात जोड़ी जा सकती है जिससे कि हम साइकोलॉजिकली इम्प्रूव कर पाए अपने आप? हमें आई थिंक जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो खुलते ही कि जैसे आजकल हर एक जने को आप नॉर्मली किसी इंसान से पूछोगे बोलेगा कि हम सिर्फ वेट कर रहे हैं लॉकडाउन खुलने का जिससे हम बाहर जा सकें। तो आई थिंक थोड़ा सा डर हमें अपने में बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डर नहीं रखेंगे, डर नहीं होगा तो हम जाके वापस से पहले जैसे रहने लग जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे। तो आई थिंक हमें डर के साथ साथ हाइजीन भी मेंटेन करनी पड़ेगी और ये नहीं भूलना कि हम फ्री हैं, क्योंकि ये एक वायरस है, हमें पता नहीं है कब वापस बहुत ही आ शानदार सकता बात है। कही आपने कि वैभव कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली डर बनेगा, निश्चित रूप से ये बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि जो डरने लगता है वही समझदार होता है, तो ये एक समझदारी का लक्षण भी है। यदि हम थोड़ा सा डरेंगे तो निश्चित रूप से हम उससे उभरेंगे भी एक दिन। शशि, आप एज ए टीचर समाज को क्या कहना चाहेंगे कि हमें अब जीवन को हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट करते हुए री अरेंज कैसे करना है अपने आप को? उदय, एज अ टीचर, एक तो अगर मेरा खुद का इंडिपेंडेंट, खुद का मतलब व्यक्तिगत आप चीज सोचेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत डर है कि कैसे जो एक पहले वाली जो लाइफ थी जिसकी हमें बहुत आदत थी उस पर कैसे आ पाएंगे। पर हाँ, ये बहुत जरूरी है कि अब चेंज तो करना ही पड़ेगा, और उसमें हम जो शिक्षाविद हैं, जो टीचिंग में हैं, उसको जो वहाँ की लोकल बॉडी है हर जगह की, वो साथ में ले, और हर लोगों को ना जो छोटे छोटे काम से संबंध रखते हैं, जो इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको बेसिकली एजुकेट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी भी हमारे मतलब हम लोग शहर में रह रहे हैं, और हमारे शहर में मतलब आसपास में ऐसे रहने वाले इतने लोग हैं जिनको सच में कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। बस उनको ये है कि हाँ, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बाहर नहीं जाना है, कोई बीमारी फैल रही है, क्या है क्या नहीं है वो उन्हें कुछ नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो अभी भी ऐसे ट्रीट करते हैं कि कुछ सबने ऐसे ही पागल बना रखा है, और मतलब इस तरीके से। तो उनको मतलब ये उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि ये सच में ऐसी चीज है कि जिससे हमें थोड़ा डर के रहना बहुत जरूरी है, जैसा अभी आपने कहा। और सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना है ही, वो तो करना है ही, बहुत जरूरी। अब यही लग रहा है कि स्कूल्स जब भी खुलेंगे, चाहे वो मई में खुलते हैं, चाहे जून में खुलते हैं, चाहे जुलाई में खुलते हैं, वट एवर विल बी द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, तो कैसे हम एक क्लास में हमारे 30 बच्चे होते हैं, तो कैसे एक डेस्क पर एक बच्चे को, या कैसे, तो दीज ऑल थिंग्स आर कि आवर गवर्नमेंट विल बी लुकिंग एंड विल हैव टू जस्ट गो विद द रूल्स ओनली। बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव करना होगा। हर एक आदमी को बहुत बारीकी से हमें समझाना होगा। हमें कुछ बातें उनको बिल्कुल क्लियर करनी होगी कि सबसे पहले हमारा शरीर है तो हम हैं, और हम हैं तो दुनिया है। हम नहीं है तो हमारे लिए दुनिया नहीं। ये बात आदमी को तय करेगी कि वो अपने आप में सबसे पहले खुद के बारे में तय कर ले कि मैंने स्वस्थ रहना है। संतोष, बहुत ही बढ़िया खूब सारी बातें हमने की। इसी प्रकार से खुद के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन यदि लागू होती है, तो क्या ये लॉकडाउन कहीं न कहीं हमें ये नहीं सिखा रहा कि साल में कम से कम एक बार तो लॉकडाउन होना ही चाहिए? बिल्कुल उदय सिंह, ये एक बहुत इससे लर्निंग है कि साल में कम से कम 2 वीक्स काइंड ऑफ, जो अब तक हम हॉलीडे लेते थे स्टैगर्ड मैनर में, ऐसा एज ए नेशन फुल कि अब तक हमने आज तक देखा नहीं था, ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतनी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन लोग एक साथ क्या घर में बंद किए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे नेताओं ने बड़ा अच्छा डायरेक्शन सेट किया है, उन्होंने अपना स्टेमिना दिखाया कि हाँ ऐसा हो सकता है, और जनता ने उधर अनुशासन दिखाया है कि हाँ हम तैयार हैं ऐसा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक 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 इसको एक रिवाज बना लेना चाहिए कि हम साल में ऐसा करें, और नेचर के प्रति सम्मान रखने के लिए हम साल में 2 हफ्ते लॉकडाउन को एज ए प्रैक्टिस ऑब्जर्व करें, ताकि हमारी तैयारी रहे इस चीज़ों को लेके, हमारी हैबिट में रहे, कभी भी ह्यूमैनिटी को इसकी जरूरत पड़े तो इसको बड़े आराम से प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा उदय सिंह, एक चीज और अभी तक हमारे डिस्कशन में नहीं आया, इस सब का इकोनॉमिकल लार्जर स्केल में क्या इम्पैक्ट है। अभी तक हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन होगा बाय 3 मई
सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ओपन अप हो जाएगा, विल बी बैक टू द नॉर्मल। ऐसा हो गया तो ठीक है। अगर बाई चांस हमें लॉकडाउन एक्सटेंड करने पड़ते हैं या फिर से ऐसा लॉकडाउन का साइकिल जाना पड़ता है, उदय सिंह जितना नुकसान ये वायरस करेगा उसी के इक्विवेलेंट है, उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान वो गरीबी करेगी, वो लोगों का नुकसान होगा, जो लोग अपनी जॉब छूट जाएगी, जिनकी गरीबी बहुत बुरी तरह से बढ़ेगी। वायरस से एक तरफ मरने का डर होगा, भूखमरी से मरने का एक तरफ डर होगा, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई होगी। आज ही मैं न्यूज़ में पढ़ा था कि स्पाइस जेट ने अपने एम्प्लॉइज को बोला है कि वो वर्क फ्रॉम होम और मतलब विदाउट पे लीव ले लीजिए आप लोग। तो ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में हो रहा है। गवर्नमेंट जरूर बोल रही है कि आपको किसी को निकालना नहीं है, सैलरी सबको देनी है, बट बियॉन्ड ए लिमिट कंपनी थोड़ा सा भी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे को मालूम है बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो जस्ट ब्रिम पे काम कर रही होती हैं, थोड़ा सा 1 महीने का झटका उनके पीनल में इतना बड़ा लॉस कर सकती है कि वो शायद अपने एम्प्लॉइज का जो एक्सपेंसेस है कॉस्ट उसको शायद ना सकता है। ऐसा होता है तो शायद हमें घर से निकल के इस वायरस के साथ साथ काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी जो SOPs और हैबिट्स हैं वही सिर्फ हमें बचा सकती हैं, अन्यथा कोई ऑप्शन मेरे को दिखता नहीं, मेरे लंबा चलता है। बहुत ही शानदार बात कही। हम अपनी बात को एक अंतिम स्वरूप देते हुए सबसे यही कहना चाहेंगे कि हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। सरकार को अपने स्तर पर बड़े निर्णय लेने होंगे, तभी जाकर दुनिया वापस उसी पटरी पर आ सकती है। यदि हम नहीं बदले तो सरकार भी निर्णय नहीं ले पाएगी और निश्चित रूप से सब कुछ बहुत विकराल हो सकता है। इसलिए हम अपने अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को सक्षम बनाएं। यही आज का मूल उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद।